الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. سر یہ لیگل امینڈمنٹ کچھ دو وجوہات کی بنیاد پہ بنی سر. پہلے سر ہر پنجاب کے ریزیڈنٹ کے لیے ضروری تھا کہ وہ گاڑی جب خریدتا ہے تو اپنے ضلع میں رجسٹریشن کرائے گا. گجرانوالہ والا گجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخوپورہ، لاہور، لوگ زیادہ لاہور میں کراتے تھے، مگر قانون تھا کہ اپنی پلیس آف لیونگ یا پلیس آف بزنس میں کرائیں، تو لوگ پھر ادھر کراتے تھے. پھر سر پنجاب میں رجسٹریشن کا سلسلہ شروع ہوا یونیورسل رجسٹریشن سیریز کا، کہ ایک ہی سیریز چلتی ہے. اگر آج AUS چل رہا ہے تو آپ ادھر سے کرائیں یا رحیم یار خان سے گاڑی رجسٹر کرائیں تو AUS سیریز لگے گی. اس سے ڈسٹریبیوشن آف ورک بھی بہتر ہو گیا اور لوگوں کو سہولت بھی ہو گئی کہ لاہور کے جعلی پتے لکھ کے لاہور سے گاڑی رجسٹر کرانا یا کسی پنڈی سے کرانا یا ملتان سے کرانے کے علاوہ اب آپ چھوٹے سے ضلع میں بھی آپ کوٹ ادو سے بھی رجسٹریشن کرائیں تو وہی سیریز لگے گی جو لاہور میں چل رہی. تو اس کے لیے جو لاء ہے نا سر، اس میں یہ ترمیم ضروری تھی. یہ ایڈیشنل سیکرٹری صاحب سر روشنی ڈالیں گے سر مزید ڈیٹیل میں کہ ایگزسٹنگ تھا سر سیکشن 24 سر لیفٹ کالم میں اگر آپ دیکھیں تو ایگزسٹنگ میں پابند کیا گیا ہے ہی ہیز ہز ریزیڈنس اور پلیس آف بزنس. تو یہ اب آبسولیٹ ہو گئی ہے. ہماری نئی جو نمبرنگ اسکیم ہے اس کی روشنی میں تو نیڈس ٹو بی اپڈیٹڈ. تو جو رائٹ کالم ہے سر، اس میں پرپوز سیکشن 24 ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ اینی ویئر رجسٹرڈ، پوائنٹ 1 کا آخری لائن پڑھ رہا ہوں سر، رجسٹرنگ اتھارٹی اینی ویئر ان دی پنجاب پروونس. تو یہ ایک نیسسری لیگل ریکوائرمنٹ ہے جس سے ہمیں اس کو دوسرا سر اس کا اسپیکٹ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے پابند بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ہماری دوسرا ڈائمنشن اس کی ہے کہ ہم موٹرنگ پبلک کو پابند کریں کہ اگر وہ پنجاب کا ڈومیسائلڈ ہے، رہنے والا ہے، تو وہ پنجاب کے اندر ہی گاڑی رجسٹر کرے تاکہ ہمارے ریونیو میں اضافہ ہو اور ہمیں پھر ٹوکن ٹیکس کی مد میں ایک سسٹینڈ ہماری انکم سٹریم بھی بنتی ہے. یہ دونوں اس کے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز ہیں اس لاء کے سر. سر جی سر، پہلے ہماری سر سیریز ہوتی تھیں جس کے جو انگریزی کے 3 حروف ہیں وہ ضلع کی نمائندگی کرتے تھے. اگر SAK ہے تو وہ شیخوپورہ یا ساہیوال ہو سکتا ہے. جو پہلے تھا، پرانا اسکیم جو پرانا تھا. اب تو یونیورسل اسکیم وہ تو اب آن لائن ہے نا جی. آپ آن لائن آپ نے جہاں سے بھی آپ کریں آن لائن، اور بٹ پہ آپ نے جو بھی نمبر ہے وہ آپ نے لے لینا. وہ دوڑ لگی ہوتی تھی کہ ہر بندہ چاہتا تھا یا اسلام آباد یا ہاں 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 وہ ختم ہو گیا. سب کو ایک جیسا ایکول ضلعی نمبر ختم ہو گیا. ضلعی نمبر تو یہ ضلعی نمبر جو ہے یہ تو آپ نے کافی عرصے سے ختم کیا ہوا ہے اس، کیونکہ کافی یہ مجھے لگتا ہے پچھلے 2 سال سے. سر یہ قانون میں ترمیم ضروری تھی سر. اچھا. یہ انہوں نے کمپیوٹرائزڈ ایک سسٹم کے ذریعے کر دیے، مگر لاء کہتا تھا کہ رجسٹریشن اتھارٹی آف ڈسٹرکٹ ان وچ ہی از ریزائڈنگ اور پلیس آف بزنس، جدھر وہ کام کرتا ہے رہتا ہے اس ضلع سے کرائے. تو ابھی بھی وہ رجسٹریشن بے شک اپنے ضلع سے کرائے، مگر اسے کہیں سے بھی کرا سکتا ہے سر پورے صوبے میں. جناب چیئرمین، میں تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنس کے اوپر. جی پلیز. وہ کہتا ہے جی کہ the administrative department intends to propose amendments in the provincial motor vehicles ordinance 1965 with an aim to making the registration of the motor vehicles
compulsory in the Punjab by its owner or keeper who are resident of province of the Punjab. In case its violation, an additional fee may be imposed, hence the bill. اب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس پرٹیکولر یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کے ذریعے ہم روکنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی پنجاب کا ریزیڈنٹ جو ہے وہ سندھ میں نہ کروائے یا کیپٹل میں نہ کروائے. اسی طرح ہی ہے نا جی کہ وہ پنجاب میں جو بھی کر سکتا ہے وہ پنجاب میں پر کہیں سے بھی کر سکتا. تو اس امینڈمنٹ میں وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جس کے ساتھ آپ اس کو روک سکیں گے؟ یا تو دوسرے پروونسز جو پنجاب کا ریزیڈنٹ ہے اس کو نہ کرنے دیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس تو کوئی ڈنڈا نہیں ہے جس کے ساتھ آپ روک سکیں. ابھی جب ہم اسلام آباد جا کے گاڑی رجسٹر کراتے ہیں تو ٹیکنیکلی ہم مس اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں ادھر سر. آپ کا جو ایجنٹ ہے وہ ایک جعلی کرایہ نامہ بناتا ہے, کسی دفتر کا ایک غلط ایڈریس لگاتا ہے ادھر اور کہتا ہے کہ میں اسلام آباد میں رہائش پذیر اور کام کرتا ہوں, میرا بزنس ہے تو اس لیے مجھے ادھر کرنا چاہیے. سر گزشتہ 2-3 سال سے یہ جو ریونیو 2-4 ارب پہ تھا, اب یہ 25-30 ارب کا بزنس ہے رجسٹریشن آف وہیکلس. تو صوبے اس کو بڑا سیریس لے رہے ہیں سر. سندھ نے اور پنجاب نے اور کے پی نے آلریڈی ٹو دا ایکسٹینٹ آف ٹوکن ٹیکس اپنے آلریڈی رجسٹرڈ وہیکلس کو پابند کر دیا ہے کہ وہ ٹوکن ٹیکس ادھر لگائیں گے. تو ہم مجبور ہو گئے ہیں یہ کرنے پہ. یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے سر, میں ایگزامپل سے بتاؤں نہیں گا. سر, وہ آپ کے انٹینشن جو ہے, آپ کا انٹینٹ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہے. دیٹس واٹ اٹ سیز ان دی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنس. سوال یہ ہے کہ جو یہ آپ نے امینڈمنٹ پرپوز کی ہے یہ کس طرح انشور کرے گی کہ اگر مجھے کس طرح روکے گی کہ میں اسلام آباد میں اپنا ریزیڈینشیل ایڈریس شو کر کے جو ہے وہ رجسٹریشن نہیں کروا سکتا؟ ویئر ڈز اٹ سے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے؟ سر ابھی نا میں نے جب یہ کیبنٹ سے پاس کرایا ہے نا سر, تو وین پیپل کم ٹو نو کہ یار پنجاب کا بندہ پنجاب سے وہ رجسٹریشن کرانے کا پابند ہوگا, یہ خبر لگی نا سر, تو پیپل اسٹارٹیڈ کمپلائنگ ٹو دس تھنگ کہ یار انہوں نے کوئی قانون بنا لیا ہے, اب مجھے سندھ سے اور اس سے نہیں وہ نا سر. تو یہ ایک والنٹری کمپلائنس کیا ماڈل ہوگا سر. اگر ابھی بھی کوئی زبردستی, بلکہ میں خود چاہوں کہ میں نے زبردستی اسلام آباد سے کرنا ہے, تو میں کہوں گا کہ میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ملازم ہوں جناب, مجھے جو ہے ادھر گاڑی رجسٹر کرانے دیں. کوئی ٹرانسپورٹر کرنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا اڈا اسلام آباد یا کراچی میں موجود ہے, بٹ ہی ہیز کوئی نہ کوئی ریزن دے کے اس کو کوئی ریزن دینی پڑے گی سر. ادروائز چاروں صوبے آہستہ آہستہ شناختی کارڈ پہ جو ایڈریس ہے نا سر, اس پہ لوگوں کو اسکرین آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی رجسٹریشن. کراچی کو سب سے زیادہ مسئلہ. جناب چیئر, میرا جو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بالکل امینڈمنٹ ہونی چاہیے اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آن گوئنگ پریکٹس یہ ہے کہ اب آپ کو ایک سنگل جو ہے وہ ایک سینٹرلائز نمبر مل رہا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپ ڈیٹ ہونی چاہیے. لیکن جو نیچے جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ہے نا, وہ میرے خیال میں یہ میٹ نہیں کرتی امینڈمنٹ. باقی یہ ہونی چاہیے, اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے نا جی کہ ہم نے ود این ایم ٹو میکنگ رجسٹریشن آف موٹر وہیکلس کمپلسری ان پنجاب, وہ یہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کرتا. کم از کم یہ امینڈمنٹ نہیں کرتا. کوئی آپ کوئی اس میں نہیں سر, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ پرٹیکولر امینڈمنٹ ہے نا, یہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر رہی. سو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس ہے یہ غلط ہے. یہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنس ہے نا, یہ وہ نہیں ہے جو یہ آپ کا امینڈمنٹ کر رہا ہے. اس کو آپ چینج کر لیں, اور اگلی دفعہ وہ جو لے کے آئیں تو اس میں وہ لے آئیں. سر اس میں اس کے سر 2 پہلو ہیں. یہ اپنا آنریبل ایم پی اے صاحب نے بڑا یہ اس کو پرٹیننٹ پوائنٹ, جو کمپلسری سر بنانا ہے اس کے لیے اس پرپوزڈ امینڈمنٹ کی سر آخری لائن دیکھیے, دا گورنمنٹ میں امپوز این ایڈیشنل فی ایز پرسکرائب. تو ہمارا آبجیکٹو ہے کہ فی الحال ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں, اویئرنیس لوگوں میں ہو. جب کمپلائنس کا ایک سرٹن لیول آ جائے گا تو ہم پھر ایڈیشنل فی بھی امپوز کر سکتے ہیں, جو جس سے ہم پینلائز کر سکیں ان لوگوں کو جو پنجاب کے ریزیڈنٹ. آپ اس کے اندر میری
सजेशन होगी चेयर को कि जिस मकसद के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई है वो कर दिया जाए, और जो ये मकसद हम करना चाहते हैं उसके लिए आइंदा कोई नई अमेंडमेंट लेके आए। ओके जी फरूक भाई। हाँ स्टैम्प पेपर लें, जो कार्ड पे एड्रेस हो सर वो इशू नहीं है, ये कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि पंजाब में रहें। कि पंजाब के बाहर जो पंजाब का रहने वाला है वो पंजाब से ही करवाए, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ना इससे नहीं आप रोक सकेंगे किसी को, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं जैसे आप इस्लामाबाद जा में सकते। करवाता हूँ, तो आपको कोई इस्लामाबाद ये वाले अमेंडमेंट कम कैसे अज़ कम नहीं रोकेंगे आपको मुझे? रोक सकेगी। वो कैसे रोकेंगे? इस्लामाबाद में आपको इसलिए रोकेंगे, आपका एड्रेस जो है वो तो इस्लामाबाद का नहीं है ना, वो फिर उनको कहना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि भी इसका आपको रीज़न देना पड़ेगा कि भी आपका आप वहाँ कोई एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में काम कर रहे हैं, या आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, या आपका अड्डा है यहाँ, या कोई ना कोई रीज़न दे के फिर आप ये कर सकते हैं। यही है ना सर रजिस्ट्रेशन में उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि मैं जहाँ मर्जी काम कर रहा हूँ। गाड़ी जहाँ से खरीदी है, मैं बिलोंग पंजाब को कर रहा हूँ, वहाँ से रजिस्टर करवाएं, ऑनलाइन कर, जहाँ मर्जी फिरें आप। सर ये आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है इससे वो ऑनलाइन है। अगले स्टेप में सर हम री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल की तरफ लेके जा रहे हैं सर। हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी में ये प्रपोज़ल लेके गए कि जो पंजाब में गाड़ियाँ चल रही हैं सिंध या केपी या इस्लामाबाद की, हम 21,000 रुपये की ट्रांसफ़र फ़ी के साथ बड़े नॉमिनल चार्जेस के साथ सर ये भी और वो भी सर दोनों चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उससे ना हमें डबल फ़ायदा है सर कि जो सिंध की गाड़ी इधर चल रही है, लसबेले की गाड़ी इधर चलती है ना सर, उसका टोकन भी रजिस्ट्रेशन तो वो एक दफ़ा दिया है पैसे सर, उस सालाना टोकन भी दूसरी गवर्नमेंट को दे रहा है। सड़कें हमारी इस्तेमाल करते हैं, रहते इधर हैं, तो वो यस सर हाँ, ये अच्छा सर आप इसकी इजाज़त दें तो सर ये और वो इकट्ठे अमल दरामद होने जा रहे हैं सर। तो उधर मैंने रेट्स की इजाज़त लेनी है सर, इधर इसकी हो जाएगी सर। सर मेरा इसके ऊपर ना एतराज़ सिर्फ है कि जो आपने ये बिल प्रेजेंट किया है ये अच्छा नहीं है, खूबसूरत नहीं है। इसकी ये लॉ वाले बैठे हैं। यस सर। जी सर ये देखें जो आपका नीचे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस लिखी गई है वो आपका जो अमेंडमेंट है वो उसको केटर नहीं करती। वो शुरू हो वो लाइन बदल सकते हैं, कोई ऐसी बात कोई लाइन बदल दें ताकि वो एक जैसे हो जाए। सर मैं ऐड का नहीं, मैं सब्ट्रैक्ट का बात सब्ट्रैक्ट कर दें कि उसमें जो ये एजेंडा इन्होंने दिया ना जी कि ओनर को हमने जो है with an aim to making the registration of the motor vehicles compulsory in Punjab। आप compulsory इसके साथ तो नहीं कर सकते ना इस अमेंडमेंट के साथ। अच्छा सर, एक जो एक मुस्तकिल और आर्जी जो एक पते वाला है शनाख्ती कार्ड में कि अगर एक इधर का है एक किसी और सूबे का है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? परमानेंट एंड वो जो उसमें आप आरजी सर आरजी पे रजिस्ट्रेशन होती है सर, होती है क्योंकि उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ लिविंग होता है ना सर वो, तो बिल्कुल होता है सर। ओके ठीक है जी। प्लीज़ आप बताएं ये जो अमेंडमेंट है इसका क्या आपका क्या व्यू है? हमने तो वेट की हुई है इसको, हम तो इस अमेंडमेंट के साथ हैं सर। ये क्वाइट लीगल है, इसको रिकमेंड किया जाए, ऑनरेबल कमेटी से सबमिशन है। ओके सर मैं और सर कोई सर स्टेटमेंट ज़रा बेहतर कर दें, बेहतर कर दें। सर एक मैं इसमें चेयरमैन साहब कहना चाहता हूँ कि पंजाब असम्बली में बार बार आते हैं कि जब भी कोई चीज़ पेश होती है उसमें उर्दू में भी पेश की जाए और इंग्लिश में भी, और ये यहाँ पे आप इसमें मेहरबानी किया करें कि जब आप लाते हैं इसमें एक उर्दू में भी आप बात का जरूर दिया करें, कोई मेरे जैसे पढ़े लिखे ना वो भी पढ़ लिया करें। सर ये इसकी जो अमेंडमेंट वगैरह जो भी आप करते हैं वो उसकी ट्रांसलेशन इन उर्दू भी साथ करवाया करें जी। सर ये जो आखिर में इन्होंने लिखा है ना जी, द गवर्नमेंट में इम्पोज एन एडिशनल फ़ी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, किस चीज़ की फ़ीस है ये? को बल्कि पुरानी वाली बात से मैं मुंसलिक करते हुए इन दोनों चीज़ों की कंपलसरी की सर आपने बात की। सर हम हाइपोथेटिकल केस देखिए, एक शख्स को हम इंटरसेप्ट करते हैं नाके के ऊपर और उस शख्स का गाड़ी रजिस्टर्ड है सूबा सिंध में,
जब हम उसका शनाख्ती कार्ड देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ है कि वो लाहौर का रहने वाला है, तो हम कंपलसरी कैसे बनाएंगे? हमारा स्टाफ उसको ट्रीट करेगा एज इफ़ द व्हीकल इज़ एन अनरजिस्टर्ड व्हीकल। जिस तरह से अनरजिस्टर्ड व्हीकल के साथ लॉ में एक प्रोसीजर है, वही हम उसके साथ अडॉप्ट करेंगे। एंड वी विल आस्क हिम टू रजिस्टर इन पंजाब, जिसकी लॉ में पहले प्रोविज़न मौजूद है, जिस डी जी साहब ने फरमाया री रजिस्ट्रेशन की शक्ल में। तो अगर हम कंपलसरी इस तरह से बनाएंगे, और ये जो दूसरी वाली बात मोअज़्ज़ज़ एमपी साहब ने फरमाई, द गवर्नमेंट में इम्पोज एन एडिशनल फ़ी, ये सर हमारी मुस्तकबिल के लिए हमने विंडो रखी है कि जब हम एक आगे ही और 2-3 साल में लोगों में अवेयरनेस हो जाएगी तो हम जुर्माने की शक्ल में सर आपने ये बताया नहीं ना, ये फीस किस चीज़ के लिए? एज प्रेस्क्राइब, वो सर प्रेस्क्राइब करेंगे। एज प्रेस्क्राइब ना करें, एज प्रेस्क्राइब के हम खिलाफ हैं। आप क्लियर कट बात करें कि आपने क्या करना है। मकसद सर यही है कि अगर किसी शख्स ने इस कानून की वायोलेशन की है, आपने जो बात करनी है, जो आपका मौक़िफ़ है, वो क्लियर करके बताएं ताकि कोई गुबाम ना रहे। और दूसरा ये कि जो ये बात कर रहे हैं ना जी कि किसी के, और हम उससे कहेंगे अनरजिस्टर्ड है, तो जो कोर्ट्स में जाके ये पहले दिन ही शट डाउन होगा। आप उनकी राइट्स को चैलेंज कर रहे होंगे। ये उसका राइट है, उसने जब करवाया तो इसमें ने किया था तो उसने खुद तो नहीं किया ना, किसी ने किया था। तो वो आप इस तरह, बहरहाल मेरी सजेशन ये होगी कि आप एक वक्त में एक शिकार करें। आपका मौक़िफ़ ये है, ये चेंज होना चाहिए कि जो पहले डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा था अब वो सेंट्रलाइज हो गया, नादरा का जो भी प्रोविंशियल हो गया, बस इसी पे ख़त्म करें। और जो आपने दूसरा काम करना है उसके लिए एक अलग अमेंडमेंट लेके आएँ ताकि वो क्लियर कट बात हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ये हर चीज़ को ना इकट्ठा ना करें, गुड मुड कर दी। क्या ख्याल है जी सर लॉ डिपार्टमेंट? मैं इसमें बस थोड़ी सी इनपुट ये देना चाहता हूँ। एक तो आपकी बिल्कुल वैल्यूएबल इनपुट है एंड आई एग्री विद इट, द डिपार्टमेंट ऑल्सो। इसके ऊपर हमारी बातचीत भी हुई है। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो इस वक्त ऑन रोड इन पंजाब हैं, मेरे ख्याल है उसमें से कल जो हमारा रफ एस्टिमेट था, अबाउट 10% ऑफ दोज व्हीकल्स जो हैं दे आर रजिस्टर्ड आउट ऑफ पंजाब। ओनर्स बिलोंग टू पंजाब बट द व्हीकल इज़ रजिस्टर्ड आउट ऑफ द प्रोविंस, मेनली इस्लामाबाद। और ये जो कमर्शियल व्हीकल्स आपकी होती हैं या फिर आपकी ये जो सिंध में कुछ रजिस्टर्ड हैं, ये बेसिकली आपका बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है। इसमें इसकी इन्फोर्समेंट का जो एंगल है उसमें डेफिनेटली हमारे पास हमारी कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। इट वोंट बी इजी बिकॉज अदर प्रोविंसेस और इस्लामाबाद they have a liberal regime because they allow other residents of the other provinces to easily register their vehicles in their province in order to seek more revenue. तो वो ज़ाहिर है उनको फ़ायदा है। तो हमें ये बेसिकली अमेंडमेंट ये तमाम एफ़र्ट जो है ये ऑन बेस्ट एफ़र्ट बेसिस ही होगी। ये हम लोगों को रोक के गाड़ियाँ उनकी बंद नहीं कर सकते, या आप उनको जो एक गाड़ी सिंध में रजिस्टर्ड है आप उसके ऊपर किस बात के तहत आप एक देंगे। हम जब नहीं वो ऑलरेडी डीजी साहब ने क्लैरिफाई किया है कि वो एक प्री रजिस्ट्रेशन वाली एक दे सस्ती कर दें। मकसद है कि वो हो रहा है सस्ती, जो गाड़ी का अगला स्टेप ही ये है। लोग जितना भी आप कह रहे हैं उस पर भी कर देंगे कि वो जितना एफर्ट लगता है टोकन लगवाने का सिंध से या बलूचिस्तान से, या बलूचिस्तान की गाड़ी इधर नहीं आती, सिंध की होती हैं। तो ये बेसिकली थ्रू बेस्ट एफर्ट एंड थ्रू अवेयरनेस एंड थ्रू लोगों को गाइडेंस दे के गाड़ी सर लसबेला के सारा हैवी ट्रैफिक सर बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी। इसका भी जो है आप इसको वो ना करें, इकट्ठा ना करें, अलग अलग बना लें। सर ये तो शासन आप जो पॉइंट कर रहे थे कि
statement of objects and reasons जी जी वो contradict कर रही हैं from the contents of the bill के जी जी जी। वो ज़रा repeat अगर please कर दें खालिद साहब। अच्छा सर, ऐसे है जी कि जो अमेंडमेंट प्रपोज अमेंडमेंट है वो कहती है जी नंबर 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26, सेक्शन 40 and section 41, every owner or keeper of a motor vehicle registered with National Database and Registration Authority as resident of the province shall cause the motor vehicle to be registered by registering authority anywhere in the province, and the government may impose an additional fee as may be prescribed. अच्छा, इसके अंदर तो उन्होंने कहा है कि जी अब आप बजाय डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग रजिस्टर करने के आप जहाँ से भी करेंगे एक ही आप वो सेंट्रल हो जाएगा। ये तो है अमेंडमेंट जो प्रपोज अमेंडमेंट है। अब आगे जो स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है वो कहती है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इंटेंड्स टू प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 with an aim to making the registration of motor vehicles compulsory in the Punjab by its owner or keeper who are resident of province of Punjab. In case of its violation, an additional fee may be imposed, hence the bill. अब वो amendment में तो कोई तरीका नहीं है जहाँ पे लिखा गया हो कि अगर आपने पंजाब से बाहर रजिस्टर की तो हम ये कर देंगे। सर ये लॉ डिपार्टमेंट एक्सप्लेन करेगा, ये सेक्रेटरी इधर ट्रांसपोर्ट बैठे हुए हैं जिनका ये बिल है, तो उसमें एक्साइज का है। मोटर व्हीकल के 2 बिल अभी ये कमेटी ने पास किए साथ ही मोटर व्हीकल के, तो इसमें 3 बिल इकट्ठे बने, तो उसकी वजह से ये लॉ डिपार्टमेंट एक्सप्लेन करेगा क्या ये। सर जो इस अमेंडमेंट की बेसिकली इंटेंट है वो यही है कि यह पर्सन जो पंजाब के अंदर रेजिडेंट है उसने कोई ऐसी गाड़ी अपने पास रखी हुई है, अपने नाम पे रजिस्टर की हुई है, या वैसे ही उसने हायर की हुई है, या इन एनी केस, क्योंकि इससे अगली जो उसकी प्रपोजिशन है वो यूज़ पंजाब में हो रही है, यूज़ पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, उसमें सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ रिस्क्स वो पंजाब के पास हैं, लेकिन गाड़ी का ये पता ही नहीं है कि आया ओरिजिनली जिसका वो नंबर लगा के फिर रहा है वो सिंध का है, वो बलूचिस्तान का है, वो ICT का है, वो ओरिजिनल है नहीं है, हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं है। और वो जो रेवेन्यू पे कर रहा है जिस तरह जनाब ने डिस्कस किया, फ़र्ज़ किया सिंध का है तो वो सिंध ले रहा है, लेकिन गाड़ी यहाँ पे यूज़ हो रही है। सर सर बिल्कुल उसी मसले को हल करने के लिए ही अमेंडमेंट आ रही है कि अगर सर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो पंजाब में अब सिंध नंबर की गाड़ी उसने अपने पास रखी हुई है, अदर दैन मैं ये कहता हूँ कि पंजाब के अलावा किसी और सूबे की उसने अपने पास गाड़ी रखी हुई है, तो वो पंजाब के रिकॉर्ड में आएगी। रजिस्टर री रजिस्ट्रेशन है बेसिकली, ये रिकॉर्ड में ला रहे हैं कि नहीं सर, वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, यहाँ पे ये कि उसने रजिस्टर करना है, री रजिस्ट्रेशन। सर मेरे सामने अमेंडमेंट है, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ जी सर, इससे ये कतन नहीं है कि वो यहाँ रजिस्टर होगा तो जो उसकी गाड़ी ओरिजिनली सिंध या बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड है तो वो कैंसिल हो जाएगी। हमने तो पंजाब ने एक्साइज डिपार्टमेंट ने फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्साइज अपना रिकॉर्ड रखना है कि वो गाड़ी यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो मेरे साथ भी वो रजिस्टर्ड है गाड़ी, क्योंकि पर्सन मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ। सर ये इस अमेंडमेंट में किधर लिखा हुआ जी सर, ये मेरी अंग्रेजी कमजोर है, समझ नहीं आ रही। सर मैं अर्ज़ करता हूँ, सर ये डीजी एक्साइज एक्सप्लेन करें। सर मैं अर्ज़ करता हूँ इसमें जो लफ्ज़ एग्जैक्ट मुझे सेंटेंस पढ़ के सुनाएं जहाँ पे ये मैं पहले सेंटेंस पढ़ता हूँ। व्हीकल टू बी रजिस्टर्ड बाय रजिस्टरिंग अथॉरिटी, इसमें री रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन री रजिस्ट्रेशन की सेपरेट क्लॉज है जो लॉ का हिस्सा है, और वो यहाँ पे जब कहा जाएगा टू बी रजिस्टर्ड तो इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि सूबा सिंध की अगर पंजाब में रजिस्ट्रेशन हो रही है तो मालिक के नज़र से देखें तो वो री रजिस्ट्रेशन है, हमारी नज़र से देखें तो वो स्ट्रेट वे रजिस्ट्रेशन है, सिंपल। registration authority anywhere in the province. ठीक है सर, सबने अपने अपने जी सर, आप इसके बारे में कोई बात करना चाहते हैं अमेंडमेंट के बारे में? अलहदा मैं समझाऊंगा। हाँ मुझे अलहदा में मीटिंग कर रहा हूँ। ये जो एक्सप्लेनेशन ये जो अमेंडमेंट है इसको मैं अप्रूव करता हूँ।
कमेटी अप्रूव करती है सर। सर खालिद साहब से रिक्वेस्ट है, अगर लेजिस्लेटिवली पॉसिबल है, क्योंकि तीनों अमेंडमेंट्स एक ही कानून के अंदर आ रही हैं, अगर क्लब हो सकती हैं, पॉसिबल है तो कर लें, नहीं तो वो तो क्लब हो जाएंगी, ये अलग हो जाएगी। जी वो 2 बिल उधर से वो तो मैं क्लब करा आया हूँ कि वो हो जाएंगे सेम कमेटी के पास। ये 2 डिफरेंट कमेटीज हैं, इसको हम देख लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो इसे कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कमेटी के नाम के साथ हाउस में आता है। वो तो फिर आएगा तो फिर हम वो भी कर लेंगे, इसको फर्स्ट अमेंडमेंट सेकंड अमेंडमेंट करके हम कर लेंगे। ठीक है। और इसमें आपसे भी गुजारिश है कि अगर एक ही लॉ में इतनी अमेंडमेंट्स आप ले के आ रहे हैं तो आप ही क्लब करके ले आया करें ताकि कमेटी को तकलीफ ना हो। नहीं वो अगर वहाँ आपने वो किया था तो यहाँ भी वो हमें उसका वो चले कॉपी दे देते तो हम उसको फिर क्लब कर सकते थे ना। लेकिन अगर आप हमें पेश ही नहीं करते तो फिर हम क्या करें? एग्जैक्टली सर, वो हम कर लेंगे सर। बगैर देखे तो कोई चीज़ नहीं ना कर सकते। ठीक है सर, ठीक। लेकिन जो हमारी ये कमेटी है ये इस चीज़ को अप्रूव करती है। सर थैंक यू वेरी मच। और कोई एजेंडा है इनका? नहीं कोई एजेंडा नहीं, शुक्रिया। हाँ सर, मेहरबानी, थैंक यू सर, आप सबका सारे मेंबर्स का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और ये जो हमारा ये मेरा